Hello guys, welcome to my channel Learn with Monica. So today we are going to see assignment of Python language, and that assignment is based on integer, floats and booleans. Okay, so first हम ये देखते हैं कि integer, float and boolean क्या होते हैं. So what is mean by integer? So integer is a whole number which may be positive or negative. Okay, so this number is without decimals. Okay, then next is what is mean by floats. So float is a function or reusable code in a Python programming language that converts values into floating point number, and floating point number are decimal value or fractional number like 0.5, 1.500, etc. So floats means the number with decimals. Okay, and what is mean by boolean? Boolean is a built-in data type in Python language, and which represents one of two values, that is true or false. Okay, so boolean represent two values, true or false. Okay, so without wasting time, let's start with the problem of assignment. So here is a first problem. In a cricket tournament, based on the outcome of particular match, a team get following points. Okay, win wins get 3 points, draws get 1 points, then loses gets 0 points. Okay, so team Aravali plays 8 matches in this tournament. It wins 4 matches, loses 3 matches and draws 1 match. So uh, what is the total number of points gained by the team Aravali? So इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, टीम अरवली है, उसने ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है उस टूर्नामेंट में टोटल 8 मैचेस प्ले किए हैं, उसमें से 4 जीते हैं, 3 हारे हैं और एक मैच जो है तो वो ड्रॉ हो गई है. तो हमें टीम अरवली ने उस टूर्नामेंट में कितने पॉइंट्स गेन किए हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं. और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए जाएंगे वो यूज करेंगे. ओके, सो फर्स्ट मैं क्या करूंगी, ये जो आउटकम है टीम अरवली के वो पहले यहाँ पे डिफाइन करके लूंगी. ओके, सो मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके लिए है. सो टीम अरवली ने कितने मैच जीते हैं, 4 मैच. सो विंस इज इक्वल टू 4, लूजेस इज इक्वल टू 3 एंड ड्रॉज इज इक्वल टू 1. ओके, सो after that we are going to calculate total points gained by team Aravali, or for that we are going to use variable which is total points of Aravali team. Okay, so variable means it is a fixed name which can store information of nature like numeric, textual or boolean etc. Okay, so हमारा variable क्या है, total points of Aravali team. Okay, is equal to 3 into wins. Okay, जब मैच जीतेंगे तो हम कितने पॉइंट देने वाले हैं, 3 पॉइंट्स देने वाले. ओके, सो यहाँ पे मैंने जो नंबर्स में लिए है वो पॉइंट्स है, और ये जो विंस, लूजेस एंड ड्रॉज है वो आउटकम है अरवली टीम के. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू विंस. जो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी मैच जीते हैं उस मैच जीते हुए मैच को हम पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 इंटू विंस प्लस 0 इंटू लूजेस प्लस 1 इंटू ड्रॉज. ओके, सो ये सेल रन होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है टोटल पॉइंट्स ऑफ अरवली टीम वो प्रिंट करके लेंगे. उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, और आप डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट द वेरिएबल अरवली पॉइंट्स. सो टोटल पॉइंट्स ऑफ अरवली टीम विच इज इक्वल टू 13. सो क्रिकेट टूर्नामेंट में अरवली टीम ने कितने पॉइंट्स गेन किए हैं, तो 13. ओके, सो 13 पॉइंट्स गेन किए. ओके, so this is the solution of our first problem. Now our second problem is, so here is the second problem. So root of a function f of x is defined as the value x where f of x is equal to 0. Consider a quadratic function f of x is equal to x square plus 3x minus 4. Find the value of the function f of x at points x is equal to 2, x is equal to minus 1, x is equal to 1. Okay, so इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, एक f of x फंक्शन दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन विच इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. ओके, तो हमें वैल्यू निकालनी है f of x की at points x is equal to 2,
x is equal to -1 and x is equal to 1. ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कमेंट दी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x at x is equal to 2. सो फर्स्ट we will go with x is equal to 2. ओके, सो हम यहाँ पे सिर्फ क्या करने वाले हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है f of x is equal to x square plus 3x minus 4. सो जो भी x है इस इक्वेशन में, वहां पे ये जो 2 है x is equal to 2 उसकी वैल्यू पुट करेंगे. ओके, सो मैंने जस्ट वही किया है. फंक्शन इवेल्युएटेड एट 2, ये वेरिएबल हमने यूज किया है, इज इक्वल टू 2 इंटू 2. ओके, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, एक ही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 2 इंटू 2 प्लस सेकेंड जो है वो क्या है 3x. सो 3 इंटू 2, एक्स के जगह पे हमने 2 डाला है. ओके, एंड देन फाइनली माइनस एक्स. ओके, सो वो प्रिंट करने के बाद we will get 6. ओके, सो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज किया है, प्रिंट f of प्रिंट राउंड ब्रैकेट function evaluated at 2 which is equal to 6. Okay, so at point x is equal to 2 the value of x f of x will be 6. Okay, so आप सेपरेटली भी यहाँ पे प्रिंट करके ले सकते हो, और डायरेक्टली जो फंक्शन में जिस सेल में आपने फंक्शन डिफाइन किया है, सो उसी में भी आप प्रिंट कर सकते हो. ओके, नाउ ये क्या था, फंक्शन इवेल्युएटेड एट 2. नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन इवेल्युएटेड एट -1. ओके, सो जो सेकेंड पॉइंट दिया है वो क्या है, x इज इक्वल टू -1. ओके, सो हम क्या करेंगे, या हियर -1. सो सिर्फ क्या करेंगे, x की जगह पे हम -1 यूज करेंगे. सो हियर इज द फंक्शन इवेल्युएटेड एट -1 इज इक्वल टू -1 इंटू -1 प्लस 3x. सो वो क्या होगा, 3 इंटू -1 -4. ओके, सो ये रन करने के बाद हम प्रिंट करके लेंगे, प्रिंट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी हमारी -6. ओके, then next is calculate the value of function f of x at x is equal to 1. okay, so x की जगह पे हम सिर्फ क्या करेंगे, यूज करेंगे x is equal to 1 यूज करेंगे. so function evaluated at 1 which is equal to 1 into 1 plus 3 into 1 minus 4. so रन करने के बाद we will get the value 0. और हम टाइप भी यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा उसका टाइप भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग टाइप फंक्शन. ओके, सो आपको जस्ट क्या करना है, टाइप लिखना है और उसके बाद राउंड ब्रैकेट में जो भी आपका फंक्शन होगा, ओके, जो भी आपका वेरिएबल होगा वो आप लेंगे और रन करने के बाद आपके सामने टाइप आ जाएगा. ओके, सो ये जो है वो क्या है, इंटीजर है, यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है. ठीक है, सो लाइक दिस हमने क्या किया, जो हमें फंक्शन दिया था f of x उसकी वैल्यू फाइंड आउट की at points x is equal to 2, x is equal to -1 and x is equal to 1. Okay, so this was our second problem. I hope you will understand properly. Now हमें क्या करना है कि जो हमने फाइंड आउट किया है वो बूलियन से हम चेक करेंगे वो ट्रू है या फॉल्स है. ओके, सो फॉर दैट check whether 2 is a root of f of x. okay, so अब जब हम 2 पे इवेल्युएट किया था, मतलब x is equal to 2 लिया था, तो हमारा आंसर क्या आया था, 0 आया था. बट मैंने यहाँ पे क्या लिया है, फंक्शन इवेल्युएटेड एट 2 is equal to 0 ऐसा लिया है. सो वो ऑब्वियसली क्या देगा, फॉल्स देगा. ओके, अगर मैं यहाँ पे 6 लू तो इट विल गिव ट्रू. या ओके, सो लाइक दैट सेम हमने फॉर -1 के लिए चेक किया एंड फॉर 1 के लिए चेक किया. सो या ऑब्वियसली हमें एट -1 क्या आया था, -6 वैल्यू आई थी एफ ऑफ एक्स की, और एट 1 क्या आई थी, 0 वैल्यू आई थी एफ ऑफ एक्स की. ओके, सो दिस लाइक दिस यू कैन चेक boolean value for f of x. okay, now third problem is a bag contain 45 apple, 65 oranges and 30 bananas. Find the percentage of each type of food items in the bag. Okay, so
एक बैग है, उसमें 45 एप्पल्स है, या 45 एप्पल्स है, 65 ऑरेंजेस है और 30 बनानास है। तो हमें एप्पल, ऑरेंजेस और बनानास कितने परसेंटेज में है उस बैग में, वो कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो फ्रूट्स है वो डिफाइन करके लेंगे। एप्पल्स इज इक्वल टू 45, ऑरेंजेस इज इक्वल टू 65 एंड बनानास इज इक्वल टू 35। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एप्पल्स के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो फॉर दैट आई यूज परसेंटेज ऑफ एप्पल्स वेरिएबल इज इक्वल टू, अब कैसा कैलकुलेट करेंगे, आप सबको तो फॉर्मूला पता ही होगा। एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स डिवाइडेड बाय total number of fruits in that bag into 100. Okay, so यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है एप्पल्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय एप्पल्स पर प्लस ऑरेंजेस प्लस बनानास। ओके, सो यहाँ पे सम लिया है मैंने, जो भी उस बैग में फ्रूट्स है उसका। ठीक है, सो ये रन करने के बाद वी विल गेट द आंसर of this. We will get this answer. Okay, and I try to interpret type of our answer, and that will be float. Yeah, obviously it is in decimal, so the type will be float. Okay, same applicable for oranges. ओके, सो सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, ये जो ऑरेंजेस है यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑरेंज लेना है, तो हम न्यूमरेटर में ऑरेंजेस ही लेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ओके, सो ये रन करने के बाद we will get answer 46.42 and the type is float, obviously. Okay, then next is for bananas. Okay, so same, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, bananas होगा। then so we will get answer 21.42 and the type is float. Okay, so this was our third problem. Then next is the fourth problem. Okay, so the problem statement is, you were playing a fun guessing game during your school break. Okay, so there were a total 100 participants excluding you. Out of these 100 people, 30 were maths majors, 45 were economics majors, and for 25 were physics majors. The game was divided into 3 rounds. In the first round, you had to guess the number of math majors and you correctly guess 20 of them. Then in second round, you had to guess economic majors and you correctly guess 30 of them. And in third round, which will be final round, you had to guess the number of physics majors and you correctly guess 20 of them. Okay, so यहाँ पे आपको accuracy calculate करनी है और उसके साथ आपको overall accuracy calculate करनी है। मतलब आपने एक गेम खेला है, उसमें 100 पीपल है, आप नहीं हो वहां, आपको कंसिडर नहीं करना है। तो 100 पीपल में से 30 जो है वो मैथ्स मेजर है, 45 इकोनॉमिक्स मेजर है एंड 25 फिजिक्स मेजर है। ये जो गेम है आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट राउंड में आपने मैथ्स मेजर्स गेस किए हैं और आपने करेक्टली 20 ऑफ देम गेस किया है। देन सेकेंड राउंड में आपने इकोनॉमिक्स मेजर गेस किए हैं एंड करेक्टली गेस 30 ऑफ देम। ओके, एंड थर्ड राउंड में आपने फिजिक्स मेजर्स गेस किए एंड करेक्टली गेस 30 ऑफ देम। ओके, so using this data you are going to find out accuracy, मतलब आपने कितना एक्यूरेटली गेस किया है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो भी टोटल मेजर्स है यहाँ पे आउट ऑफ 100 जितने भी मेजर्स है वो पहले डिफाइन करके लेंगे। ओके, सो स्टोर द नंबर ऑफ मैथ मेजर्स, सो नंबर ऑफ मैथ मेजर्स इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स मेजर्स इज इक्वल टू 45, नंबर ऑफ फिजिक्स मेजर्स इज इक्वल टू 25। ओके, वो आपको पहले ही पता था। देन आपने जो करेक्टली गेस किए हैं वो हमें डिफाइन करने हैं। सो उसके लिए मैंने वेरिएबल यूज किया है, द नंबर ऑफ योर करेक्ट गेसेस ऑफ मैथ मेजर्स इज इक्वल टू 20, देन फॉर इकोनॉमिक्स मेजर्स इज इक्वल टू 30 एंड देन फॉर फिजिक्स मेजर्स इज इक्वल टू 20। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे। सो मैथ एक्यूरेसी इज इक्वल टू, अब एक कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, द नंबर ऑफ योर करेक्ट गेसेस ऑफ मैथ मेजर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैथ मेजर्स इनटू 100। ओके, आपने जो गेस किए हैं वो न्यूमरेटर में आएंगे और डिनोमिनेटर में जो टोटल नंबर ऑफ मैथ मेजर्स थे वो आएंगे और उससे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या हमें क्या मिलेगी, मैथ एक्यूरेसी मिलेगी और वो हम यहाँ पे प्रिंट करके लेंगे। सो जो मैथ एक्यूरेसी है, मतलब आपने जो करेक्ट किया है, सॉरी मैंने ये रन नहीं किया था,
ओके, सो आपने जो करेक्टली गेस किया है वो कितने परसेंट है? 66.66% आपने करेक्टली गेस किए हैं मैथ मेजर्स। ओके, सो ये जो सेम है वो फिजिक्स मेजर्स के लिए भी होगा, सॉरी इकोनॉमिक मेजर्स एंड फिजिक्स मेजर्स के लिए भी होगा। सो उसके लिए सिर्फ क्या होगा, हम इकोनॉमिक मेजर्स का यूज करेंगे। So economic accuracy is equal to the number of your correct guesses of economic measures divided by number of economics measures into 100. Okay, और print करने के बाद you will get 66.66 which is the accuracy of economic measures जो आपने correctly guess किए हैं। Then next is for physics accuracy. So physics accuracy के लिए आप सिर्फ क्या यूज करेंगे? physics measures यूज करेंगे। So for that your formula will be the total number of your correct guesses of physics measures divided by number of physics measures into 100. So you will get physics accuracy. Okay. Now आपको क्या करनी है? ओवरऑल जो accuracy है वो कैलकुलेट करनी है। ओके, एंड ओवरऑल accuracy के लिए क्या होगा? आपने जो करेक्टली गेस किए हैं, करेक्टली जितने भी गेस किए हैं, लाइक मैथ मेजर्स के लिए 20, इकोनॉमिक मेजर्स के लिए 30 एंड फिजिक्स मेजर्स के लिए 20, अगर हम इसके एडिशन करेंगे तो कितना होगा? 70। ओके, सो 70 डिवाइडेड बाय 100, और हमें ये जो है कितने में से निकालना है? 100। टोटल पीपल कितने थे? 100 पीपल थे। सो 100 में से हमने कितने गेस करेक्टली गेस किए थे? 70 गेस किए थे। ठीक है, 70 correctly guess किए थे। So our formula will be for overall accuracy is equal to 70 divided by 100 into 100. So we will get 70% overall accuracy। मतलब हमने जो भी तीनों मेजर्स के लिए गेस किया था, करेक्टली गेस किया था, उसका एक्यूरेसी परसेंटेज कितना है? 70% है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टूडेज असाइनमेंट। ठीक है, सो हमने सक्सेसफुली टूडेज असाइनमेंट कंप्लीट किया है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व योर असाइनमेंट। ओके, मेरा ये सजेशन है कि आप डायरेक्टली ये कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आप पहले सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर आप इस असाइनमेंट की या इस वीडियो का प्रेफर कीजिए। ठीक है, उसके बाद पहले आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और हेल्प के लिए इस वीडियो को प्रेफर कीजिए। ठीक है, सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।